Good morning, students. Hope you all are fine. Let's start with the last topic of elasticity of demand, that is numericals. Today we'll proceed with the numericals and the assignment will be related to the numerical itself. I have written a question for you. The initial price of ice cream is ₹4 per cup and initial demand is 1 cup only. It is 1 cup only. If price of ice cream falls to ₹2 per cup, demand increases to 4 cup, find elasticity of demand. That means what we are required to find is elasticity. ED निकालना है. Elasticity is denoted by ED, so we have to calculate elasticity. Now let's jot down what we all have in the question. Original price was called as P. New price was called as P1. Original quantity was called as Q and new quantity was called as Q1. In case you jot down all these things before proceeding with the question becomes easy. Now, the initial price, that means original price of the ice cream, that is P, is given to be ₹4. And the initial demand, that means original demand, that is Q, is said to be 1 cup. New price, if the price of the ice cream falls to ₹2, falls by ₹2 and falls to ₹2 have got lot of difference. Fall by ₹2 मतलब ₹2 से गिर गया. Fall to ₹2 में मतलब कि ₹2 पे आ गया. That means you need to read the question properly. Falls by or falls to, both doesn't mean the same thing. They have lot of difference. So P1 is 2 and demand increases to 4 cups. That means नई quantity जो है that is 4 cups. Now ED is to be calculated. As I have already discussed, the formula will be ED is equal to minus why? Because there is inverse relationship, delta Q upon delta P into P upon Q. Delta Q कैसे निकालते हैं? Delta Q is equal to Q1 minus Q. Q1 means new quantity and Q stands for old quantity. So new quantity was 4, old quantity was 1. So delta Q comes to 3 units. Because it's quantity, it will be mentioned in units. Now, let's calculate delta P also like this. Delta P is P1 minus P. P1 is 2 and P is 4. So, delta P comes to minus 2. Now, when we have all these being calculated off, now the question becomes easy. We are just to put down the values in the equation itself. So ED is equal to, elasticity of demand is equal to, ये minus formula वाला minus है, delta Q that comes to 3 upon delta P that is minus 2 into original price that is 4 and upon में Q that is original quantity that is 1. इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट दैट वन थिंग विल बी नेगेटिव, आइदर चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस. वाई वन विल बी नेगेटिव? बिकॉज क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, तो एक तो नेगेटिव जाएगा ही. तो उस नेगेटिव से क्वेश्चन वाला नेगेटिव 100% कैंसिल होगा. ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, तो ये माइनस को ऑटोमेटिकली कैंसिल होना ही होना है. हमने ये माइनस साइन सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है. सो ईडी इज इक्वल टू, इक्वेशन में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 4 3s 12 upon 2, ED comes to 6. Elasticity of demand comes to 6. ED is equal to 6. That means अगर हम इसकी डिग्री पे कमेंट करें, जो हमने 5 डिग्रीज डिस्कस की थी. फर्स्ट वॉज यूनिटरी इलास्टिक, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे पीछे से. यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1. परफेक्टली इलास्टिक ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी. परफेक्टली इन इलास्टिक ED इज इक्वल टू 0. एंड अगर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, so और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मीन्स आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन 1. अब इसमें जो आंसर आया है दैट इज ED इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स आंसर इज ग्रेटर देन 1. सो ED इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. अगर डिग्री पे कमेंट करना हो तो आंसर इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. वेरी कॉमनली इट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द आंसर एंड कमेंट अपॉन द डिग्री.
दोबारा एक बार बताऊंगी बेटा, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी करेंगे। ऑलवेज इट इजी, अगर आप इस क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इक्वेशन वाली फॉर्म है उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, राइट डाउन एवरीथिंग एंड देन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। सो इलास्टिसिटी कम्स टू 6 greater than unitary elastic. This was one type of question that I have done. I'll solve 3-4 questions for you so that you have a command over the numericals. Now next question, same way हम इसको भी proceed करेंगे. When price of a good is ₹5, the consumer buys 20 unit of that good, and when price changes to ₹7, the quantity purchases changes to 12 unit. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ईडी निकालनी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ईडी कैलकुलेट करना है तो ईडी के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इज ₹5, दैट मीन्स पी इज गिवन एज 5, द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स, क्यू इज 20 units. When price changes to ₹7, नया प्राइस P1 is 7, the quantity purchased changes to 12 unit. Q1 is given as 12 units. Now again, do remember बेटा, इन चीजों को जॉट डाउन करना बहुत जरूरी है। जो पहला ओरिजिनल प्राइस था उसे P कहना है, जो नया प्राइस है उसे P1 कहना है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसे Q कहना है, और जो नई क्वांटिटी थी उसे Q1 कहना है। नाउ ED इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ED इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q एंड डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P। डेल्टा Q दैट इज Q1 माइनस Q, डेल्टा P P1 माइनस P। पहले डेल्टा Q निकालते हैं। Q1 इज 12, Q इज 20, so it comes to -8. Delta P, P1 minus P, 7 minus 5 as per the question, 7 minus 5, it comes to 2. Now ED is equal to minus delta Q upon delta P. Delta Q is -8 upon delta P is 2 into original price 5, original quantity is 20. हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज को एज सच ऊपर से उठा के नीचे इक्वेशन में डाल दिया है। नाउ कैंसिल इट ऑफ, 4 is 8, 2 10 is 20, so ED comes to माइनस से माइनस कैंसिल, 2 upon 2, तो ED comes to 1, 2 upon 2 it comes to 1, माइनस से माइनस को कैंसिल किया, ED comes to 2 upon 2 that is equal to 1. कमेंट अपॉन द डिग्री, चाहे पूछा या नहीं पूछा है, बेटर है कि आप कमेंट करिए डिग्री। जब आंसर इक्वल टू 1 है तो डिग्री क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक। इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, elasticity of demand is unitary elastic, that is equal to 1. Unitary elastic, that is equal to 1. I hope this question is also clear as we have done it. हमने कुछ नहीं किया, मैंने सेम क्वेश्चन एक और सेम काइंड का क्वेश्चन किया है so that you can have an idea कि करना कैसे है। पहले 2-3 न्यूमेरिकल्स में स्पीड स्लो रहेगी बिकॉज आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी कि पी कैसे लिखना है। पी सिंपली जो पहला प्राइस दिया हुआ है वो पी है, जो नया प्राइस है जो चेंज होने के बाद आया है वो P1 है। ऐसे ही पहली जो दी हुई क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी है, वो Q है, जो प्राइस चेंज के बाद क्वांटिटी आई है वो Q1 है। एंड इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ED। कमेंट अपॉन द डिग्री, डिग्री आंसर को देख के कमेंट करनी है। एज आंसर इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी, यूनिटरी मीन्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's proceed with the third question.
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। अब हमें क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही दे दी गई है, ईडी इज इक्वल टू -2। प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 per unit to ₹8 per unit। दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस वॉज 10, नया प्राइस जो गिरने के बाद आया है दैट इज इक्वल टू 8। Find the percentage increase in quantity demanded। Now the question is of different kind। परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है। हमें इलास्टिसिटी दी हुई है, हमें नया प्राइस और ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, हमें परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है। नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस? अगेन मैंने जब आपको ये टॉपिक करवाया था तभी बताया था किसी भी चीज का जब परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100। दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस इंटू 100। P1 is new price, P is old price अपॉन में P that is old price into 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो into 100 आ जाएगा। So P1 is 8 minus 10 अपॉन में P that is original price into 100. It comes to -2 by 10 into 100. It comes to -20%. It comes to -20%. आंसर परसेंटेज में आया है, it is -20%. Now formula will be ED is equal to percentage change in quantity demanded। ये वाला फॉर्मूला भी जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था बताया था, इसी से हमने दूसरा फॉर्मूला रादर डिराइव किया था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवाई थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तभी ये फॉर्मूला क्लियर कर दिया था। सो माइनस साइन डिनोट करना है शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ ईडी इज इक्वल टू ईडी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ईडी दिया हुआ है -2। अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, जब इलास्टिसिटी हमें माइनस में दी होती है दैट मीन्स क्वेश्चन में जो हमें इलास्टिसिटी दी हुई है वो ऑलरेडी नेगेटिव दी हुई है तो इधर वाला नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। हमें माइनस साइन इनवर्स रिलेशन शो करने के लिए लगाना है। डू रिमेंबर जब इलास्टिसिटी माइनस में दी हुई है, हमें ईडी ऑलरेडी माइनस में दी हुई है तो हमें जो फॉर्मूला का माइनस है वो ऑटोमेटिकली नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो माइनस इधर लग चुका है इनवर्स साइन वाला। ED is equal to -2 is equal to percentage change in quantity demanded जो हमें निकालनी है demanded अपॉन में percentage change in price हमने ऑलरेडी निकाल लिया that is -20। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 into 2 it comes to 40% is equal to percentage change इन प्राइस। दोबारा देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 40%। परसेंटेज में निकालना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज, गलती से प्राइस लिख दिया, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 40%। लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन अगेन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 दी हुई थी, हमने ईडी इक्वल टू -2 ले लिया। प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8, ओरिजिनल प्राइस 10, न्यू प्राइस इज गिवन एज 8 पर यूनिट। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा, ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता तो आंसर जो है वो माइनस आता, बट क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट मीन्स हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नाउ वैसे भी प्राइस क्योंकि 10 to 8 गिरा है, प्राइस गिरा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ही करेगी। परसेंटेज के लिए हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो हमने फॉर्मूला यूज करना था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मुझे प्राइस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया P1 - P अपॉन में P into 100।
अगर क्वांटिटी को हमने चेंज करना होता तो Q1 माइनस क्यू अपॉन में Q इंटू 100 होता, लेकिन अगर प्राइस को कन्वर्ट करना है तो P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100. तो 8 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, it comes to minus 2 upon 10 into 100, it comes to minus 20%. But that means percentage fall in prices is 20%. माइनस साइन है मतलब प्राइस फॉल किया है, प्लस साइन मतलब राइज किया है. तो परसेंटेज फॉल इन प्राइसेस इज 20%. मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, इसको 20% डाला, माइनस के साथ मतलब प्राइस फॉल किया है, माइनस से ये ईडी वाला माइनस कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गई आपकी 40%. सो परसेंटेज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 40%, विच इज विल बी एक्सप्रेस्ड एज आंसर. मैंने ऑलरेडी एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में दी है, जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, कि अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव में दी हो तो फॉर्मूला में जो माइनस साइन लगाते थे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन शो करने के लिए, वो माइनस साइन आपको ऑपोजिट साइड में यूज नहीं करना है. सो सिमिलरली मैंने माइनस साइन को यहाँ से रिमूव कर दिया. सिंपल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस माइनस 20 आया था, इस माइनस से ये वाला जो क्वेश्चन वाला -2 का इलास्टिसिटी का साइन है वो कैंसिल हुआ एंड इलास्टिसिटी कम्स टू 40%. दिस वाज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, अनदर वे ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना किसी चेंज आता जाएगा, समझ आते जाएंगे. किसी में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दी है, प्राइस निकालना है. किसी में परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है. किसी में ईडी निकालनी है. किसी में पी या P1 में से कुछ निकालना है, या Q या Q1 में से भी कुछ निकालना है. पहले सबसे इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो. क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, पूछा क्या है. प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Price of a commodity increases from rupees 50 per rupees to 60 per unit. Rupees 50 per unit to rupees 60 per unit. Quantity demanded initially was 200 unit. What should be the new quantity demanded? Again, new quantity demanded को हम क्या कहते हैं? Q1. हमें क्वेश्चन में Q1 निकालने के लिए दिया हुआ है. So that the elasticity of demand is estimated to be unitary. Very, very important and very nice question to understand. Elasticity of demand is established to be unitary. उन्होंने बोला ED को unitary establish करना है. अगर मेरी बात याद हो तो elasticity equal to unitary का मतलब है ED is equal to 1. हमें ED equal to 1 establish करना है, मतलब unitary. Unitary का मतलब क्या होता है? 1. So ED is equal to 1 दे दिया. हमें डायरेक्टली ED is equal to 1 ना देके unitary लिख दिया. Unitary का मतलब ही ED is equal to 1 है. Price of a commodity increases from rupees 50 per unit. P was 50, P1 is 60 per unit. Quantity demanded initial was 200. Q दिया हुआ है 200. Q1 हमें निकालना है. इस क्वेश्चन की डिमांड है हमें Q1 निकालना है. हम सेम फॉर्मूला पे काम करेंगे जो अब तक यूज किया है. ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q. इलास्टिसिटी नेगेटिव में नहीं दी हुई तो हम फॉर्मूला वाला माइनस एस सच डालेंगे. पुटिंग वैल्यूज, पहले डेल्टा P निकाल लो. डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, दैट इज 60 माइनस 50, इट कम्स टू 10, पॉजिटिव 10. ED इज इक्वल टू, अब इस वैल्यूज पुट करेंगे. ED की जगह 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q को डेल्टा Q ही रखेंगे अभी, upon delta P is 10 into original price was 50, original quantity was 200. 50 4s are 200. 1 is equal to delta Q minus delta Q upon 40. 40 is equal to minus delta Q. मेरे पास इक्वेशन बन गई 40 is equal to minus delta Q. Now अब हमारे पास 40 इज इक्वल टू डेल्टा Q क्या होता है? Q1 माइनस Q. डेल्टा Q क्या होता है? Q1 माइनस Q. माइनस डेल्टा Q की जगह रख रही हूं Q1, या इस इक्वेशन को और इजी कन्वर्ट करके डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस 40 कर दिया मैंने. अब प्रोसीड करूंगी. डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस 40 एक्सप्रेस करने के बाद डेल्टा Q इज Q1 माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 40. Q1
is to be find out. Original Q was given as 200 in the question, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, is 200 is equal to -40. Q1 is equal to -40, ये -200 उधर जाके +200 हो जाएगा. So Q1 is equal to 160 आंसर आ जाएगा. Q1 comes to 160 इन यूनिट्स आंसर को, क्योंकि क्वांटिटी निकालनी है उसे यूनिट्स, अगर प्राइस निकालते तो उसको रुपीज में एक्सप्रेस करते. दोबारा से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. हमें क्वेश्चन में ईडी इज इक्वल टू 1 यूनिटरी लिया हुआ था, हमने ईडी इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लिया. ओरिजिनल प्राइस वाज गिवन एज 50, न्यू प्राइस इज गिवन एज 60. ओरिजिनल क्वांटिटी वाज गिवन एज 200, न्यू क्वांटिटी वाज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड. मैंने डेल्टा पी निकाला, दैट इज P1 माइनस पी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10. फिर मैंने ईडी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो डिटेल फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू पुट किया. मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में. ईडी की जगह 1 डाला, इसको क्लियर करके लिख रही हूँ, ईडी की जगह 1 डाला इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, माइनस फॉर्मूला वाला है, डेल्टा क्यू अपॉन 10, दैट इज डेल्टा पी जो आपने 10 निकाला है इसको यहाँ डाल दिया, इंटू पी. ओरिजिनल प्राइस वॉज गिवन एज 50 अपॉन क्यू वॉज गिवन एज 200. तो मेरा 1 आ जाता है, डेल्टा क्यू आ जाता है -40. 40 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -40 आ गया. अब मैंने डेल्टा क्यू जो हमारा -40 आ गया है उसको तो आई ब्रेक इट इनटू Q1 माइनस क्यू इज इक्वल टू -40. सो Q1 इज इक्वल टू -200, एज Q इज गिवन एज 200, Q1 माइनस 200 इज इक्वल टू -40 जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर इज इक्वल टू -40. सो Q1 इज इक्वल टू -40, ये -200 है उधर जाके +200 हो जाएगा. दिस इज मैथ्स दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम. सो Q1 इज इक्वल टू 160. आंसर नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स. सो 160 यूनिट्स क्वांटिटी जो है ये न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 160 यूनिट्स. सो यू नीड टू राइट द आंसर एज न्यू क्वांटिटी डिमांडेड that is new quantity demanded, that is Q1 is equal to 160 units. This is the way to express the answer, 160 units. These were the various kinds of numericals that we have discussed today. There are certain more kinds of numericals that I'll give you as assignment in the next class. Kindly try solving the numericals. I'll give 15 numericals as homework in the next class. Numericals are just a calculation of 2 minutes, but don't rush up with the numericals. Firstly, put down all the things that have been given in the question. Do comment upon the elasticity if being asked in the question, and always express the answer with units. Quantity in units, और अगर price in rupees, आप उसके साथ जो है उसकी मेजरिंग क्वांटिटी लिखेंगे, प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी इन यूनिट्स. उसको आंसर को जो एक्सप्रेस करना है वो ऐसे ही एक्सप्रेस करना है. और यूनिटरी का मतलब इक्वल टू 1 है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब इलास्टिसिटी हमें ऑलरेडी माइनस में दी होती है तो जो फॉर्मूला वाला माइनस है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. फॉर्मूला में माइनस जो है वो सिर्फ इनवर्स रिलेशन दिखाता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर्मूला वाला माइनस साइन, इट इज शोज नथिंग मोर देन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इस चीज को ध्यान रखना है. इस पे भी छोटा एमसीक्यू पूछा जाता है, व्हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैरीज अ नेगेटिव साइन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैरीज अ नेगेटिव साइन बिकॉज इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये मतलब प्राइस या क्वांटिटी डिमांडेड में से एक जो है वो फॉल करेगा तभी दूसरा राइज करेगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड. सो विद दिस हमने न्यूमेरिकल्स का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट class will be assignment based on elasticity of demand. Thank you.